Hello everyone, today we will discuss model answer for the question released on 25th May 2020. This is week 3 day 1 of UPSC main 2020 daily answer writing program. Some of you have asked me that from where we can access the question. You can access question daily at 8 a.m. in the morning from two places. One is on our Telegram channel. The link of our Telegram channel I have mentioned in description, and second on our YouTube channel. So डेली मॉर्निंग 8 AM मैं वहाँ पे क्वेश्चन रिलीज करता हूँ. आप YouTube के ब्लॉग में जाके वहाँ पे क्वेश्चन को देख सकते हैं. वहाँ पे उसका JPG मीन्स पिक्चर मैं अपलोड करता हूँ. वहाँ से आप क्वेश्चन को देख सकते हैं. देन उसके आंसर को लिखो, और जब मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसके साथ आप टैली कर लो. विदाउट राइटिंग ये पूरा एक्सरसाइज एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज होगा. आप लिखोगे तो और बेटर वे में इसको यूटिलाइज कर पाओगे. सो वीक 1 के अंदर सोसाइटी एंड करंट अफेयर्स था. वीक 2 के अंदर डेट वाज ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स, एंड इन वीक 3 वी हैव पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड मॉडर्न हिस्ट्री प्लस करंट अफेयर्स. सो दिस आर द फोर क्वेश्चन विच वी हैव रिलीज्ड on 25th May 2020. Question number 1, question number 2, question number 3 and question number 4. Each question you have to write in 150 words and the weightage of each question is 12.5 marks. First question, many voices have had strengthened and enriched the nationalist movement during Gandhian phase. Elaborate. As I have mentioned earlier, in every question you have to concentrate on two things. One is your keyword and another is directive. Keyword will determine content of your answer. So यहाँ पे keyword है Gandhian phase. तो Gandhian phase क्या है, क्या उसका characteristics था, Gandhian phase कब से start होता है, कब खत्म होता है, and directive will determine direction of your answer. Elaborate means expand करना है आपको आंसर को. तो during Gandhian phase there were lots of different voices or that have strengthened national movement of India. So in this way you have to write introduction of this question. Always in introduction explain keyword so that the person examiner who is checking your paper, he or she will get a glimpse or he or she will get good understanding of your answer. जैसे आपको पता है गांधीयन फेज क्या है, सपोज एग्जामिनर को नहीं पता हो तो अगर आप लिखोगे ही नहीं तो उसको पता कैसे चलेगा. तो इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम 1915, जब गांधी जी इंडिया में आए थे, टू 1947 वाज नोन एज गांधीयन फेज ड्यू टू ह्यूज इन्फ्लुएंस एंड लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी. Before 1915, Indian national movement was not that organized, but after coming of Gandhiji and assuming leadership of Indian national movement, it became more organized. This phase or Gandhian phase was characterized by taking freedom struggle to masses through satyagraha, mass movement, promoting inclusiveness, Hindu, Muslim, male, female, upper class, lower caste, everybody was included in mass movement, being accommodative to everyone concerned, being accommodative to concern of students, to concern of business, to concern of farmers, laborers, everyone, and representation from all section of society. So ये characteristics था गांधीयन phase का. अब ड्यूरिंग गांधीयन फेज डिफरेंट आइडियाज क्या क्या इमर्ज हुए थे. तो एक था मदन मोहन मालवीय का आइडिया. सो मदन मोहन मालवीय वाज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ नेशनलिस्ट एजुकेशन एंड ही वाज द फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी. तो उनका ऐसा कहना था कि हमें नेशनलिस्ट एजुकेशन लाइक इंडिया के शास्त्रों के बारे में, एंशियंट इंडिया के बारे में, इंडिया के हिस्ट्री के बारे में, इंडिया के साइंस के बारे में मासेस को सिखाना चाहिए. तो उनके अंदर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट आएगा. तो मदन मोहन मालवीय वाज फाउंडर ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड ही वाज प्रमोटिंग नेशनलिस्ट एजुकेशन टू इनहेंस मास नॉलेज अबाउट इंडिया. क्योंकि आप इंडिया को जान ही नहीं पाओगे तो नेशनलिज्म का फीलिंग कैसे आएगा. Aurobindo Ghosh, he was promoting spiritualism and advocating revolutionary method, like you can use a force against a Britisher. What is the point of being रिप्रेसिव. आप फोर्स को यूज करो ब्रिटिशर के अगेंस्ट बिकॉज दे आर ऑल्सो यूजिंग अगेंस्ट यू. सुभाष चंद्र बोस ये सोशलिज्म को एडवोकेट करते थे एंड ही वाज द स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ यूजिंग मिलिट्री टू फाइट ब्रिटिशर बिकॉज यू कैन नॉट फाइट विथ ब्रिटिशर बाय यूजिंग पीस. सो दिस वाज सुभाष चंद्र बोस आइडिया. उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाया था. लोकमान्य तिलक
he took a freedom struggle to masses through cultural activity like a Ganpati festival, and he was the strong supporter of Swarajya. Swarajya means self-rule. Moderate faction of Indian National Congress, they were using constitution and legal method to counter Britisher. उनका ऐसा था कि we should expose Britisher in their own game, और ब्रिटिशर इंडिया के साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें उनको पार्लियामेंट के अंदर एक्सपोज करना चाहिए. Women participated in large number, working class, professional, religious institution, businesses, students, they all participated in national movement. ड्यू टू गांधीयन फेस इंडियन नेशनल मूवमेंट ज़्यादा डेमोक्रेटिक हो गया, और जिसने हेल्प किया इंडियन सोसाइटी को मैच्योर होने में. राइट नाउ लुक एट द कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी. वी हैव मैनी रिलीजन, वी हैव मैनी लैंग्वेजेस, caste, class, ethnicity differences, but then also we are together as a country. So this phase of national movement really helped in building India. और उसके बाद कोई मेजर सिविल वार नहीं हुआ. There is no other example other than India जहाँ पे इतना डाइवर्सिटी होने के बाद भी we all are together. So this phase helped to build Indian society and to mature Indian society. Question number 2, SS. SS means you have to assessment कि whether this statement is correct or wrong, and to what extent do you think this statement is correct. Assess the role of British imperial power in complicating the process of transfer of power during 1940. In 1939 वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गया था, तो उसके बाद वाला पीरियड है 1939 to 1947. Introduction. Explain keyword. Explain the scenario of 1940s in introduction. So Britisher were desperate to seek India participation in World War II, but Indian leader का ऐसा मानना है कि नहीं, we will support Britisher only when they will give freedom to India. इंडियंस का ऐसा कहना था कि ब्रिटिशर आर फाइटिंग अगेंस्ट फेसिस्ट फोर्सेस, डेट इज अगेंस्ट जापान, अगेंस्ट इटली एंड अगेंस्ट जर्मनी, टू सेव डेमोक्रेसी. बट हाउ कैन इंडिया फाइट टू सेव डेमोक्रेसी विदाउट बीइंग डेमोक्रेटिक. तो पहले आप इंडिया को फ्री करो, फिर हम आपके साथ फैसिस्ट फोर्सेस के साथ हम फाइट करेंगे. ब्रिटिशर एक डिलेमा में, कंफ्यूजन में फंस गए थे कि अगर इंडिया वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करता है इन द साइड ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिशर, देन ब्रिटिशर का पोजीशन वीक हो जाएगा, दे मे इवन लूज द वॉर, एंड इफ दे गिव फ्रीडम टू इंडिया दे विल लूज सिग्निफिकेंट कॉलोनी, बिकॉज इंडिया उनके लिए एक रिसोर्सफुल कॉलोनी था, और इट वाज लाइक जेवल इन द क्राउन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर. सो ब्रिटिश एम्पायर के लिए मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉलोनी था. तो डिलेमा था कि क्या एक तरफ वार है और दूसरी तरफ सिग्निफिकेंट कॉलोनी, अब करें तो क्या करें. दूसरा, अगर इंडिया को फ्रीडम दे भी दिया, दूसरे एशियन कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में, लैटिन अमेरिकन कंट्री में, वहां पे भी नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट होगा एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट डिमांडिंग फ्रीडम. अब क्या करें. इन बॉडी एक्सप्लेन, क्या ब्रिटिशर सही में ऐसे करते थे. तो यस, ब्रिटिशर वेर डिलेइंग ग्रांटिंग फ्रीडम टू इंडिया एंड इफेक्टिवली ट्रांसफरिंग पावर. हाउ. फर्स्ट, बाय क्रिएटिंग फ्रिक्शन और इंटेंसिफाइंग डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स इन इंडिया, बिटवीन प्रिंसेस रिप्रेजेंटिंग प्रिंसली स्टेट्स एंड इंडियन लीडर्स. उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट करते थे, और ब्रिटिशर क्या करते थे, दे वर यूजिंग प्रिंसेस एज अ प्रॉक्सी, between Muslim League representing Muslim and Indian National Congress representing Collective Voice of India. So Britisher tried to divide India on communal line. Britisher tried to divide India based on princely states and British India. ब्रिटिशर ने बहुत सारी कमेटी को अनाउंस किया था, ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, एंड दे वेर इंगेज्ड इन एंडलेस नेगोशिएशन, और जिसकी वजह से ब्रिटिशर ने ट्रांसफर ऑफ पावर को और ज़्यादा डिले कर दिया. Conclusion. Delay and complication created by Britisher and their indecisiveness, उसका इफेक्ट ये हुआ कि उसने इंडिया में कम्युनलिज्म को स्टार्ट कर दिया. हिंदू महासभा रिप्रेजेंटिंग हिंदूज, मुस्लिम लीग रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम, और दोनों के बीच में क्लैशेस हुआ विच इवेंचुअली लेड टू पार्टीशन ऑफ इंडिया. इंडिया को अगर ब्रिटिशर टाइमली और प्रॉपर वे में अगर इंडिपेंडेंस दे देते हैं तो इंडिया उनका एक इम्पॉर्टेंट एलाई होता, और इंडियंस के अंदर भी ब्रिटिशर का एक गुडविल होता. बट समहाउ ब्रिटिशर लॉस्ट दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड दे हैव लॉस्ट देयर ग्लोबल इमेज एंड गुडविल अमॉन्ग इंडियंस, इस डीले की वजह से.
प्रॉब्लम क्रिएट करने की वजह से। अभी भी आप देखो इंडिया पाकिस्तान के बीच में प्रॉब्लम है। द रीज़न इज पार्टीशन। इफ पार्टीशन प्रॉपर वे में हुआ होता तो आज इंडिया पाकिस्तान एनिमी नहीं होते, मे बी एलाइज होते हैं और उनके बीच में प्रॉब्लम नहीं होता। बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, लुक एट द कंडीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वी आर नॉट एबल टू मेक डेवलपमेंट. Number two, India is spending significantly on its defense budget because of a Pakistan issue. Question number three, assessment. The importance of the account of Chinese and Arab travelers in the reconstruction of the history of India. India के history को reconstruct करने में Chinese and Arab traveler ने कैसे help किया? They have helped especially in reconstructing history of medieval India and ancient इंडिया का तो हमारे पास प्रॉपर अकाउंट था. So reconstruction of ancient India and medieval India. First, we don't have chronological record like Egyptian civilization or Greek civilization. वहाँ पे written record था, but एंशियंट इंडिया, मेडिवल इंडिया में आपको उतने रिटर्न रिकॉर्ड नहीं मिलेंगे. सो लैक ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, नो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इवेंट और इश्यूज इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, and subjectivity in interpretation of archaeological or literary sources, because I am affected by one ideology, or say I am, my tiltation is towards a particular political side or political religious side, और जिसकी वजह से मैं लिटरली सोर्स को उसी डायरेक्शन में देख रहा हूँ. से एक हिंदू एग्जावेशन करेगा तो वो कहेगा कि यहाँ पे टेम्पल था, एक मुस्लिम एग्जावेशन करेगा वो कहेगा यहाँ पे मॉस्क था. सो दिस इज सब्जेक्टिविटी ऑफ ओपिनियन. हम ऑब्जेक्टिव होकर उसको नहीं देखते थे. सो फॉरेन ट्रेवलर्स जो थे वो आई विटनेस थे ये सारे इवेंट के, और मोरलेस वो न्यूट्रल थे. रीजन बिकॉज दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट इन इंडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, सो दे वेर जस्ट लुकिंग द थिंग्स इन a neutral manner. So they helped us to reconstruct history. Chinese account, it helped us to reconstruct ancient Indian history. Fa Hien, Hugh Sung, आई सिंह, इन्होंने हमें हेल्प किया गुप्ता रूल को समझने में, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ गुप्ता रूल, एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल कंडीशन ओवर देयर, नेचर ऑफ बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन. सो चाइनीज ट्रेवलर helped us to understand ancient Indian history. Then we have Arab travelers like Suleiman, Abu Jayad. They helped us to understand social economic condition. अल-बरूनी एंड इबन बटूटा, वो भी अरब ट्रेवलर्स थे. सो मेडिवल इंडिया के अंदर अरब ट्रेवलर्स ने हेल्प किया हमें अंडरस्टैंड करने के लिए, एंड एंशिएंट इंडिया के अंदर वहाँ पे चाइनीज ट्रेवलर ने हमें हेल्प किया. कंक्लूजन, there are some issue with reliability of account provided by those travelers owing to their personal biases and their narrow outlook. because जैसे कोई बाहर से आता है तो वो इंडिया में सब कुछ गलत ही देखता है और उसको क्रिटिसाइज करता है, वो अप्रिशिएट नहीं करता ताकि वो अपने सिविलाइजेशन को प्रॉपर वे, अपने सिविलाइजेशन को सुपीरियर वे में दिखा पाए. तो यहाँ पे भी कुछ प्रॉब्लम है, बट देन ऑल्सो मोर और लेस दे हैव हेल्प्ड अस टू रिकंस्ट्रक्ट इंडियन हिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 4, throw light. Throw light means discuss on the significance of the thought of Mahatma Gandhi in present time. So what was the thought of Mahatma Gandhi and how it can solve the present day problem? Gandhian thought or philosophy is a blend mixture of socialism जो इक्विटी प्रमोट करता है, spiritualism, environmentalism, environment conservation, liberalism, free, with sole objective of solving people problem in scientific and humane manner. Right now हमारे सारे problem के पीछे reason है we have lost our logic, we have lost our scientific sense and we have lost our humanity, our values. हम किसी को help नहीं करते हैं, we always look things from narrow prism, or we just accept the thing rather than questioning the things. In present world, what are the challenges we are facing? We are facing challenges of inequality, environmental degradation, intolerance, terrorism. Gandhian thought or philosophy will help us to resolve this problem. How it will help? Now in body, mention Gandhian thought. Now in body, you can mention Gandhian thought and relate it with present problem. So Gandhian thought था non-violence के बारे में.
सो यहाँ पे जैसे हम वॉयलेंस यूज करते हैं किसी को सप्रेस करने के लिए, तो एक एंडलेस वॉयलेंस का साइकिल स्टार्ट हो जाता है एंड इट में गिव राइज टू टेररिज्म एंड सिविल वॉर। तो वॉयलेंस किसी चीज का आंसर नहीं है। देन सत्याग्रह, ये हेल्प करेगा हमारे डेमोक्रेसी को डीपन करने में, स्ट्रेंथन करने में। कभी कभी लोगों का कंप्लेन होता है कि गवर्नमेंट इज नॉट दैट रिस्पॉन्सिव, गवर्नमेंट इज नॉट दैट अकाउंटेबल, गवर्नमेंट इज नॉट लिसनिंग टू देम। तो थ्रू सत्याग्रह वी कैन फोर्स गवर्नमेंट टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिव एंड अकाउंटेबल। Swaraj, Government of India has recently launched Atmanirbhar Bharat Abhiyan, and in past it has launched Make in India mission. तो इसका बेसिक पर्पस था कि हमें इंडिया में मैन्युफैक्चर करना है, वी शुड यूज इंडियन प्रोडक्ट, ये सेल्फ रिलायंस को प्रमोट करेगा। तो इफ यू आर यूजिंग लोकल प्रोडक्ट्स तो इट विल बूस्ट लोकल इकोनॉमी। सपोज पीपल इन यूपी एंड बिहार, they are using the products which are produced locally, so वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। बट अभी हम देखते हैं कि स्टेट्स लाइक यूपी एंड बिहार इज नॉट डेट इकोनॉमिकली डेवलप, एंड द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स दे आर मोर डेवलप्ड। सो इफ वी आर प्रमोटिंग स्वराज using local products, so it will help in distribution of wealth and income. We should try to conserve environment, which is environmentalism. It will save us from ill effect of pollution, climate change and disaster. Gandhi ji once remarked that earth has resources to satisfy our need, but it doesn't have resources to satisfy our greed. तो हमें earth से उतना ही resources pick करना चाहिए which earth can regenerate. We should not exploit earth. Women emancipation, Gandhi ji was a strong advocate of women participation in politics, social, religious and economic activity. So it will help to broaden our outlook and promote gender equality. गांधी जी टॉलरेंस को प्रीच करते थे। राइट नाउ यू सी मॉब लिंचिंग और कम्युनलिज्म, डेट इज अ साइन ऑफ इनटॉलरेंस। किसी और के व्यू को लेके, किसी और के रिलीजियस प्रैक्टिस को लेके वी डोंट सपोर्ट दैट थिंग, और जिसकी वजह से मॉब लिंचिंग अकर होता है। सो दिस थिंग यू कैन एक्सप्लेन इन टेबुलर फॉर्म इन ए बेटर वे। मैंने क्या किया कि गांधीयन थॉट को लिया और प्रेजेंट प्रॉब्लम के साथ रिलेट किया। ऑलवेज गिव पॉइंटेड रिस्पॉन्स टू योर आंसर। ज़्यादा आप लिखोगे तो वो काम का नहीं है। इतना लिखना कि आप ब्रॉड वे में उस आंसर क्वेश्चन के साथ जस्टिस कर पाओ। कंक्लूजन, Gandhian thought is based on experimentation or experience. Gandhian thought is not that academic thought, like किसी ने लिख दिया कि आपको ये फिलोसफी करना है। ये एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपीरियंस पे बेस है, और उसका सोल पर्पस था टू सॉल्व पीपल प्रॉब्लम विदाउट बीइंग ऑब्सेस्ड विथ रिजिड राइट और लेफ्ट आइडियोलॉजी। जैसे अभी आप किसी को कहोगे कि इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पुअर, देन पीपल विल से कि नो तुम तो लेफ्टिस्ट हो गए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन, पीपल विल से आप राइटिस्ट हो गए। तो लोग पूरे दिन लेफ्ट राइट करते रहते हैं और किसी को पता ही नहीं है लेफ्ट क्या है राइट क्या है। जैसे एक मेरा दोस्त में वो कहता है कि यू आर टॉकिंग लाइक ए लेफ्टिस्ट, तो मैंने कहा कि टेल मी व्हाट इज ए लेफ्टिस्ट, टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेफ्टिस्ट, डू यू नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ राइट। हमें नहीं पता है, बट फिर भी हम लेफ्ट राइट करते हैं। गांधी जी जो है ये लेफ्ट राइट में नहीं पढ़े। उन्होंने कहा कि मेरा सोल ऑब्जेक्टिव है लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है विदाउट बीइंग ऑब्सेस्ड विद लेफ्ट एंड राइट थिंग। गांधी जी के आइडियल्स को अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे, world will become more sustainable, more equitable, more humane and more inclusive. So this is all about model answer of 25th May 2020. If you have doubt in any of the question, then you can get back to us. You can write in a comment box and we will answer your query. And if you have any suggestion on how to improve this program, then also please write to us. We will try to improve this thing. So now we are concluding our lecture. Thank you and have a good day.